सभी को मेरा नमस्कार। एक फायर ट्रेनिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू यूज और ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, विच फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड ऑन विच क्लास ऑफ फायर। हम ये तीनों पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको पता लग सके कौन कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है, और मेन पॉइंट है कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास ऑफ फायर पे आपको यूज़ करना है ताकि आप उसको सेफली ऑपरेट कर सको। फर्स्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, this is stored pressure type fire extinguisher. You can clearly see the image. And the second type of fire extinguisher, is cartridge type fire extinguisher. ये दो टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे पास on the basis of manufacturing. The main difference between these fire extinguisher is the construction. You can clearly see in both the images and differentiate that the construction of both the fire extinguishers is different. If you can take a screenshot of this image and you can मेक डिफरेंसेस, आपको इसमें पता लगेगा कि इसके जो स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी अपर असेंबली, ऑपरेटिंग असेंबली जो है, हैंडल, सेफ्टी पिन, प्रेशर गेज, होज, ये सब अलग है इन कंपैरिजन टू कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर आप देखेंगे प्लंजर है, सेफ्टी क्लिप है, कोई आपके पास प्रेशर गॉज नहीं मिलता, डिस्चार्ज ट्यूब अलग है, तो ये असेंबली इसकी डिफरेंट है। देन हमारा जो अंदर एक्सटिंग्विशिंग मीडियम है, मींस इस इमेज के अंदर आपको वाटर दिख रहा है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के तौर पे, एंड इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा गया है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के तौर पे। एंड इफ यू सी, जो इसके अंदर हमें स्टोर्ड प्रेशर दिखाया गया है एरो, ये हम इसको प्रोपेलेंट भी कह सकते हैं। प्रोपेलेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है इसको प्रेशराइज करेगा, इसको धकेलेगा बाहर की साइड में, तो इसको हेल्प करेगा बाहर निकलने में। एंड इसको हम एक और नेम देते हैं एक्सपेलेंट। इसके दोनों नेम ठीक हैं, एक प्रोपेलेंट, एक एक्सपेलेंट, बोथ नेम आर करेक्ट। इन दीज एक्सटिंग्विशर, stored pressure type fire extinguishers, stored pressure is generated by nitrogen. Nitrogen is used to create pressure inside the fire extinguisher. Extinguishing media can be changed, but the gas which is used to create pressure is always nitrogen. And in cartridge type fire extinguisher, the cartridge is filled with CO2 gas. The quantity of gas and the size of cartridge may change according to the size of the fire extinguisher, but the gas will be remain same, that is CO2. After that, we will be moving toward how to operate these fire extinguishers. I will be explaining the proper mechanism of working one by one of stored pressure type extinguisher and cartridge type extinguisher in my next video.
but now we will be moving forward on the topic how to use fire extinguisher. This is the method to use any fire extinguisher. You can clearly see the capital letters which was written as PASS. P means pull the pin in safety handle. When you will be operating the fire extinguisher, you will be noticing a safety pin in a handle which will be pulled at the time of operation so that the handle can be operated. Then aim the nozzle at the base of the fire. हमें जो नोजल है उसकी डिलीवरी होज के अंदर जो नोजल लगी हुई है उसको हमें फ्लेम पर नहीं करना है. ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हमें उसे फ्लेम पर नहीं मारना है, हमें उसको उस जगह पर एम करना है जहां पर एक्चुअल में आग लगी हुई है. आफ्टर दैट एमिंग द नोजल you have to squeeze the handle slowly. You have to squeeze the lever slowly, not immediately. Then you have to sweep side to side so that the extinguishing media can be properly cover the area in which fire is happening. I hope this point is clear. And if you have any doubt, the comment box is open for everyone. You can comment and I will respond that. Now moving towards our next point, the main point on which type of fire we have to use which fire extinguisher. This is the main point of the video. This one point I will also cover in this video. You can see this chart. You can take a screenshot of this. You can see different colors: red, cream, blue, black and yellow. This color code, this is the color code of fire extinguishers. This is the color code of fire extinguishers, so that you can clearly identify the which fire extinguisher is hanging on the wall or placed on that site. Red is the color code of water fire extinguisher. Cream is the color code of foam type fire extinguisher. Blue is the color code of dry powder fire extinguisher. Black is the color code of CO2 type fire extinguisher. And yellow is the color code of wet chemical. In my last video, I have covered that the classes of fire: A class fire, B class fire, C class fire, D class fire, electrical fire and F class fire. I hope these points are clear to all, and if not clear, you can watch my last video. Now the main point is on which class of fire we have to use which extinguisher. हमें कौन सी क्लास ऑफ फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है. सो आपको इस टेबल में राइट एंड रॉन्ग दोनों साइन दिख रहे होंगे. जैसे हम टेबल को अब स्टडी करते हैं तो इसके अंदर आपको दिखेगा वाटर एक्सटिंग्विशर के आगे ए क्लास फायर में हमारा राइट लगा हुआ है. मींस हमें सिर्फ जो वाटर एक्सटिंग्विशर है ए क्लास फायर मींस फायर इन पेपर, coal, wood, etc., which are non-conductive in nature and non-liquid means solid materials or organic materials. आप उस क्लास ऑफ फायर पर वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो. ना तो आप बी क्लास फायर पे यूज करोगे, ना सी क्लास पे, ना डी क्लास पे, ना ही इलेक्ट्रिकल एंड एफ क्लास पे. बिकॉज अगर आप बी क्लास फायर पे वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो वाटर की डेंसिटी हैवियर है देन ऑयल. तो वाटर एक्सटिंग्विशर
अगर आप उस पर यूज करते हैं, वाटर नीचे चला जाएगा डेप्थ में, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फ्लेम नहीं जाएंगी हमारी। सी क्लास पर भी नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो गैशियस फायर है, वाटर उसका कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर दैट मेटल फायर पर भी आपका वाटर नहीं काम करेगा बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल विच इज बर्निंग हैज हायर टेम्परेचर। when the water is reaching to that surface of the metal, it will evaporate suddenly, immediately. वाटर वहां पर पहुंचते ही इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल फायर पर तो आप भूलकर भी वाटर एक्सटिंग्विशर यूज ना करें, इस पर स्ट्रिक्टली मना है बिकॉज आपको सीवियर शॉक रिसीव हो सकता है, सीवियर शॉक लग सकता है आपको। एफ क्लास भी कुकिंग ऑयल्स की फायर है, मैंने बताया जैसे कि लिक्विड फायर्स हैं, कुकिंग ऑयल की फायर है, ऑयल पर आपको यूज नहीं करना है, तो आपको ए क्लास पर ही वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। आफ्टर दैट हमारा आता है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर को आप ए क्लास फायर एंड बी क्लास फायर पर यूज कर सकते हैं। बी क्लास फायर पर क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि फोम की डेंसिटी कम होती है ऑयल से, इसी वजह से ऑयल के ऊपर फोम फ्लोट करेगा। फोम के फ्लोट करने की वजह से हमारा जो फायर ट्रायंगल का स्मूदरिंग वाला पोर्शन कवर होकर के उसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। आपको पता होगा कि 3 मेथड होते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के, कूलिंग, स्टारवेशन एंड स्मूदरिंग। सो फोम एक्सटिंग्विशर स्मूदरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस बी क्लास ऑफ फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा एंड और किसी क्लास ऑफ फायर पर आपको फोम यूज नहीं करना है। ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, आप इसको ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर सभी पर यूज कर सकते हैं। इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है? हमारे पास जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो नॉन कंडक्टिव इन नेचर होता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज करने से इसको शॉक नहीं लगेगा, ये सारा एरिया कवर कर लेता है, तो आप मेटल फायर पर भी यूज कर सकते हैं, ये नॉन रिएक्टिव भी होता है। एंड सी क्लास पर भी यूज कर सकते हैं आप इस एक्सटिंग्विशर को। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, जिस एक्सटिंग्विशर में एक्सटिंग्विशिंग मीडिया CO2 गैस होती है, उसको आप बी क्लास फायर मींस फ्लेमेबल लिक्विड फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज कर सकते हैं, मींस बी क्लास फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर पर आप CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। एंड वेट केमिकल, एज आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वेट केमिकल गीला है एंड केमिकल है, मींस रिएक्टिव होगा। सो आप इसको ए क्लास फायर एंड एफ क्लास फायर मींस कुकिंग ऑयल, जो ऑलिव ऑयल है, फैट है, इन क्लासेस पर यूज कर सकते हैं। ना ही आप इसको इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज करेंगे, बी क्लास फायर पे भी नहीं, सी क्लास पर भी नहीं और डी क्लास पर भी नहीं यूज करेंगे। आई होप आपको ये टेबल क्लियर है कि आपको कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर पर यूज करना है, सो दैट आप उस फायर को प्राइमरी स्टेज पर एक्सटिंग्विश कर सकें एंड सेफली ऑपरेशन कर सकें। If you have any doubts and queries, please do comment in comment box. Comment box is open for everyone. I will be answering each and every question which will be asked in the comment box, and please do like, share, subscribe to my channel. Thank you.